Hi students. We were discussing and we have already started the chapter of animal tissue. तो एनिमल टिश्यू के बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में. सो देयर आर टू पार्ट्स ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. So what is animal? So what is actually, first of all we discuss what is tissue. Then what are the different types of tissues? In that we have studied that there are epithelial tissue. Then we have studied already there are different other types of the tissues like epithelial. Then it depends on the its function. We can divide based on the function and location. We can divide the tissue in different categories, namely epithelial tissue, then connective tissue, then muscular tissue and nervous tissue. तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है. हमने पढ़ा है कि टिश्यू क्या है, ठीक है, टिश्यू के टाइप्स क्या हैं. So on the basis of the location and its function, we have divided the tissue in different categories, namely epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. ठीक है. तो epithelial tissues के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे. epithelial मतलब the tissue which is present at the top, or like the uppermost layer. Epithelium, epi means like the first layer of, because epithelial tissue is actually the first layer, and it is actually made up of one or more than one layer. So normally it is made up of one layer, or there are some types of the epithelial tissue like simple, then compound. So on that basis we can understand that how many layers are there in case of epithelial tissue. So epithelial tissues के हमने बारे में जब पढ़ा तो हमने देखा कि उसके बेसिकली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड. सिंपल में हमने क्या पढ़ा? सिंपल epithelial tissue can again be divided into some other categories, namely squamous, cuboidal, columnar, ciliated, and pseudostratified. Ciliated epithelium can be divided in further categories like columnar, cuboidal. Again, pseudostratified also divided into two categories, that is columnar and ciliated. Then compound epithelium again divided into two parts, or in two types basically, that is your stratified and transitional epithelium. ठीक है. तो stratified में हमने क्या पढ़ा था? squamous stratified, then cuboidal stratified, columnar, ठीक है, then columnar ciliated stratified. then squamous भी हमने दो तरह का पढ़ा, keratinized, non keratinized, है ना. So last video lecture में I think we have finished till the cuboidal stratified epithelium. ठीक है. So now we will continue on the category of stratified epithelium. That is coming under compound epithelium, multi-layered epithelium, and there we have already discussed cuboidal stratified, then keratinized, non-keratinized. So today we will talk about the next category, that is your stratified columnar epithelium, and after that we'll move on. ठीक है ना. चलिए, so let's start. So we'll discuss what is stratified columnar epithelium. Stratified मतलब हमने पहले डिस्कस किया. Stratified मतलब multiple layers, where there is a strata. ठीक है, बहुत सारे लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, ऐसे करके जब बहुत सारा लेयर होता है उससे जब एपिथेलियम बनता है, उस तरह के बहुत सारे मल्टीपल लेयर से जब एपिथेलियम बनता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम. ठीक है. अब कोलुमनार क्यों कहते हैं? बिकॉज द सेल, द शेप ऑफ द सेल व्हिच एक्चुअली फॉर्म दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम, दे आर मेड अप ऑफ कोलुमनार शेप सेल. एक तो स्ट्रैटिफाइड है, मतलब बहुत सारे लेयर आप देख सकते हो, देयर वी हैव मल्टीपल लेयर्स, राइट, एंड that means stratification is there, and the cell which is actually responsible for the for the structure, those cells are actually columnar in shape. So that's why the name of this type of epithelium is known as stratified columnar epithelium, right. So the cells present on the upper side also become flat-ended. तो हम पहले भी हमने देखा है कि stratified जो आपके एपिथेलियम है उसमें जो अपर वाला या जो टॉप मोस्ट जो लेयर होता है उसमें जो सेल होता है, इट बिकम फ्लैट एंडेड. सो वैसा यहाँ पे भी हमें देखने मिलेगा जो सेल लेयर है, टॉप मोस्ट सेल लेयर है, इफ यू सी द टॉप मोस्ट सेल लेयर्स बिल्कुल ऊपर की तरफ, सो दे बिकम फ्लैट एंडेड, राइट. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. लोकेशन मतलब कहाँ पे हमें ये स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू मिलता है? कॉन्जंक्टिवा, ठीक है. कॉन्जंक्टिवा ये हमारे आई का पार्ट है, ठीक है. विल स्टडी इट इन डिटेल
जब हम आई के बारे में पढ़ेंगे इन द सेंस ऑर्गन टॉपिक. So there we will study the eye, ear in detail, nose. ठीक है. So conjunctiva is a part of human eye. Then anus, pharynx, where actually we chew and swallow the food. pharynx मतलब कौन सा एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए कि if just we consider okay, if this is the I have just tried to draw the mouth part. So if this is the buccal cavity, माउथ के बिल्कुल पास शुरू हो जाता है उसके immediately we have the buccal cavity. buccal cavity के बाद जो हमारे neck region के पहले there is a funnel shaped slope, what we can see, there is a funnel shaped slope from both the sides. So this funnel shaped structure which is this is actually a region. ठीक है, this is basically actually nothing but it's a region and that region is known as pharynx. So buccal cavity के बाद हमारे माउथ पार्ट शुरू होने के बाद क्या रहता है, buccal cavity. buccal cavity के अंदर क्या रहता है, टीथ है, टंग है ना. So immediately after the buccal cavity, the region which is present before the food pipe and windpipe, that is called pharynx. तो नॉर्मली हम लोग buccal cavity में क्या करते हैं, जो भी हम फूड इनगल्फ करते हैं उसको हम चू करते हैं, उसको हम चबाते हैं अच्छे से और सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है. उसके बाद जो बोलस बनता है वो जाता है हमारे फेरिंग्स के थ्रू, कहाँ पे, फूड पाइप पे. ठीक है, और फूड पाइप से कहाँ जाता है, सीधे स्टमक में. स्टमक में स्टमक से कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन्स में, इंटेस्टाइन. ठीक है ना. सो दैट वी विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ डाइजेशन इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ compound epithelium. So these are the different types of compound epithelium we have discussed. Now there is one more type we need to discuss in that in the category of compound epithelium, that is a stratified ciliated columnar epithelium. ठीक है, तो नाम से पता चलेगा आपको, stratified ciliated columnar epithelium मतलब क्या है. स्ट्रैटिफिकेशन भी है, मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं. सीलिएटेड मतलब जो सेल से बना है ये एपिथेलियम, उसमें सीलिया है और सेल जो उसका शेप क्या है, कोलुमनार है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम. ठीक है. इट्स आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ सीलिएटेड कोलुमनार सेल्स एंड बेसल लेयर इज एक्चुअली कोलुमनार सेल्स. ठीक है. एंड इट्स लाइन एंड इट लाइंस द लैरिंक्स एंड अपर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट. ये हमें कहाँ मिलता है, ये जो सीलिएटेड कोलुमनार स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, ये हमें लैरिंक्स जो रीजन है या अपर पार्ट जो हमारा पैलेट पार्ट है हमारे माउथ में, जो बकल कैविटी में जो पैलेट एरिया है, वहां पे हमें ये जो एपिथेलियम है ये हमें मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑलरेडी आई बिलीव वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांजिशन एपिथेलियम, but not in that detail, so we'll talk about that in detail. So that is your transitional epithelium and pseudostratified epithelium. What are those? We'll discuss. But before that, we'll talk about glands. ठीक है. Glands क्या होता है? ठीक है. We'll talk about the transitional epithelium later on. But before that, we need to talk about the glands. तो इसे समझने के लिए glands actually क्या है? So first of all, see, glands are actually basically these are the modification of the epithelium. तो नॉर्मली जो एपिथेलियम होता है ना, इसका ही मॉडिफिकेशन होता है, तब जाके बनता है ग्लैंड. तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा आई नीड टू शो यू ट्राई टू शो यू स्मॉल स्मॉल डायग्राम सो इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मान लीजिए कि अगर ये एपिथेलियम का लेयर है तो देयर आर सेल्स. ठीक है ना. सो देयर आर सेल, सो देयर आर मल्टीपल, देयर विल बी सेल्स. सो ये सारे सेल्स हैं. ठीक है. अब क्या होगा, देयर विल बी मॉडिफिकेशन. Now this layer, this epithelium, it will modify. It will actually have a inner folding. तो ये जो normal epithelium है ये क्या होगा, ये inner folding करेगा और धीरे धीरे आप यहाँ पे देख सकते हो जो structure मैंने यहाँ बनाया है. So there is an inner folding you can see, and that inner folding it will form the gland. So पहले आप देख सकते हो, you can see that epithelium is it's a complete normal structure.
बट दिस एपिथेलियम धीरे धीरे देख सकते हो क्या हो रहा है, देयर इज अ इनर फोल्डिंग, देयर इज अ फोल्डिंग इनसाइड इनर फोल्डिंग, एंड दैट इनर फोल्डिंग स्लोली फ्रॉम द ग्लैंड्स। ठीक है, सो तो एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम वो सॉरी ग्लैंड क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, सो सम ऑफ द कोलुमनार एंड द क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड। अब देखो जो आपके सेल्स है वो भी मॉडिफाई होके ग्लैंड हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में। ठीक है ना, सो द बेसिक द ग्लैंड मीन्स दिस इज द कलेक्शन ऑफ द सेल्स विच आर सेक्रेटरी इन फंक्शन। तो बहुत सारे सेल जो है वो मिलके ग्लैंड्स बना सकते हैं। अच्छा, कोई एक सिंगल सेल है वो भी मतलब खुद एक ग्लैंड बन सकता है, एग्जांपल है म्यूकस ग्लैंड। जो गॉबलेट सेल का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें जो एक सेल है गॉबलेट सेल जो है, इट बिकम हिमसेल्फ नॉट हिमसेल्फ द सेल इटसेल्फ बिकम मॉडिफाइड इनटू अ ग्लैंड। ठीक है ना, तो सेल एक सिंगल सेल भी मॉडिफाई होके ग्लैंड जैसा बिहेव कर सकता है, और बहुत सारा सेल जो मिलके भी एक साथ जो है मॉडिफाई करके मतलब ग्लैंड बन सकता है। तो ग्लैंड का काम क्या है, सीक्रीट करना। ठीक है, कोई भी जो ग्लैंड होगा उस जैसे आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, सलाइवरी ग्लैंड्स के पढ़ा होगा, या फिर जब हम देखते हैं हमारे स्टमक में बहुत सारे जो ग्लैंड्स है व्हिच इज सीक्रेटिंग different types of different types of substances, like we also have sebaceous glands, odoriferous glands, right? Mammary glands in case of female which secrete milk. So अलग अलग ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो अलग अलग सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं। तो ग्लैंड्स अगर है तो उसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। ठीक है, ग्लैंड बनने का पर्पस ही है सिक्रीशन। तो ग्लैंड क्या है, नॉर्मली क्या है, ग्लैंड कैन बी लाइक इट मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एग्जांपल गॉबलेट सेल, और बहुत सारे सेल मिलके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्लैंड। उसका काम क्या है, उसका काम है सिक्रीशन करना। ठीक है, so we can classify the gland in certain categories on the basis of the number of cells. There are under a certain criteria we can classify. First criteria we will classify, we will discuss, that is on the basis of number of cell. कितने सेल से वो ग्लैंड बना है उसके बेसिस में हम ग्लैंड्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूनिसेल्युलर ग्लैंड, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एग्जांपल गॉबलेट सेल। अभी मैंने बताया, देखो गॉबलेट सेल का एग्जांपल हम लेते हैं ना, जैसे स्टमक जो है हमारा, हम जो कुछ खाते हैं, जो हमारा फूड है, हम उसको चू करते हैं, बोलस बनता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, अपने स्टमक को भेज देते हैं। वहां पे कंडीशन कंडीशन कैसा होता है, इट इज हाईली एसिडिक। ठीक है, कंसंट्रेट HCl जो होता है वहां पे रहता है, तो कैसे एसिडिक कंडीशन होता है। इवन दो आवर स्टमक इज नॉट डाइजेस्टिंग इटसेल्फ, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो गॉबलेट सेल है स्टमक के पूरा इनर लाइनिंग में, यहाँ पे गॉबलेट सेल रहता है, वो म्यूकस जो है वो सीक्रेट करता है, और वो म्यूकस जो सीक्रेट कंटिन्यूअसली करता रहता है, इससे क्या होगा, इट मेंटेन अ थिक म्यूकस लेयर सराउंडिंग द स्टमक इनर लाइनिंग। एज ए रिजल्ट the HCl which is present inside the stomach, which is highly acidic, it is not affecting the lining or the tissue which is actually making the stomach inner lining। ठीक है, तो सेल के ग्लैंड कितने सेल से बना है, फर्स्ट हम उस क्राइटेरिया को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर, मतलब द ग्लैंड इज ओनली मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एग्जांपल इज गॉबलेट सेल। उसका काम क्या है, म्यूकस सीक्रेट करना। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, एक तो सिंगल सेल से बन सकता है, दूसरा है बहुत सारे सेल मिलके बना सकता है, जैसे मैंने दिखाया था अभी आपको कि एपिथेलियम का बहुत एक कंप्लीट लेयर है व्हिच इज गेटिंग मॉडिफाइड एंड इट इज फॉर्मिंग मतलब एक एपिथेलियम का लेयर है, जस्ट लेट अस सी कंसीडर इट एज अ लाइन, दिस इज एपिथेलियम लेयर। तो ये पूरा खुद से ऐसे इंटर फोल्डिंग होके मॉडिफाई होके एक ग्लैंड बना सकता है। ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सो ये हो सकता है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे सेल एक साथ आके बनाएगा ग्लैंड, इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ठीक है, सो मल्टी सेलुलर ग्लैंड एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, यूनिसेलुलर एग्जांपल था, यूनिसेलुलर जो ग्लैंड उसका एग्जांपल क्या था, गॉबलेट सेल। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे हम ग्लैंड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या था वो, नंबर ऑफ सेल, कितने सेल से ग्लैंड बना है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है टाइप्स ऑफ सिक्रीशन, वो ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है उसके बेसिस में हम ग्लैंड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इफ द सीक्रेशन इज वाटरी विद प्रोटीन,
पहला क्या है, अगर जो सिक्रीशन किसी ग्लैंड का है वो क्या है, वाटरी है, थिक नहीं है, वाटरी है, उसका सिक्रीशन पानी जैसा सिक्रीट करता है कोई भी सब्सटेंस विद प्रोटीन, प्रोटीन के साथ पानी कुछ एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो जिसका जो कंसिस्टेंसी है वो वाटरी है, बिल्कुल पानी जैसा है, देन these glands is no and then these glands are known as serous gland। अगर ऐसा कोई ग्लैंड है जो कि जिसका सिक्रीशन बिल्कुल पानी के जैसा पतला है, या हम जैसे बोल सकते हैं उसका जो consistency है वो it is very thin, just like a water, and it is also having protein in its secretion। अगर ऐसा है कोई ग्लैंड है जो कि इस तरह का सब्सटेंस सिक्रीट करता है तो उस ग्लैंड को हम कहते हैं सीरस ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट म्यूकस ग्लैंड। तो वैसा कोई ग्लैंड, ऐसा जो भी ग्लैंड है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है उसे हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। एग्जांपल गॉबलेट सेल्स। ठीक है, देन सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड एग्जांपल है ऑयल ग्लैंड, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सो द एग्जांपल ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड इज व्हाट, इट इज द ऑयल ग्लैंड। ठीक है, सो ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड, ये जो है these are the examples of the glands on the basis of their secretion। ठीक है, so mode of secretion के basis में हम divide कर सकते हैं glands को। so on that basis it is of three type, first is serous gland, second is mucous gland, third is sebaceous gland। ठीक है, now third criteria क्या है, third criteria is, पहला तो second criteria था type of secretion, third criteria है mode of secretion। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप ऑफ सिक्रीशन जो है मतलब किस तरह का जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट होता है, मोड ऑफ सिक्रीशन मतलब कैसे सिक्रीट करता है वो, किस तरीके से, क्या प्रोसेस है उसको सिक्रीशन का, उसे बोलते हैं मोड ऑफ सिक्रीशन। तो उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है ग्लैंड्स को तीन कैटेगरी में। पहला है होलोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है मीरोक्राइन ग्लैंड, तीसरा है एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो होलोक्राइन ग्लैंड इसको लेकर हम शुरू करेंगे पहला। सो होलोक्राइन ग्लैंड मींस, सबसे पहले तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो सिक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड, सॉरी बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन वो क्या होता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ रिलीजिंग द सिक्रीशन, द ग्लैंड आर एक्चुअली बेसिकली थ्री टाइप्स। मोड ऑफ सिक्रीशन मतलब देखो ग्लैंड जो होता है ना, इसको थोड़ा सा हम बात करेंगे। ग्लैंड जो है, हमने क्या बात किया, ग्लैंड्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, वो एक सेल से भी बन सकता है, मल्टीपल सेल से बन सकता है। काम क्या है इसका काम है टू सीक्रेट सर्टेन केमिकल्स और सब्सटेंसेस फॉर सर्टेन पर्पसेस इन द बॉडी। ठीक है ना, कुछ एक पर्पस होता है उस ग्लैंड का, कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करता है कुछ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है, तरीका मतलब देखो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन। ठीक है ना, तो एक्सोक्राइन मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन मतलब होता है द ग्लैंड्स व्हिच pour their secretion on the epithelial surface directly or through ducts are called exocrine gland। क्या कह रहा है कि the gland which pour their secretion on the epithelial surface directly or through ducts, मतलब ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास पॉइंट ए में, दिस इज पॉइंट ए, सॉरी हम मान लेते हैं कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए और ये ग्लैंड है। ठीक है, सो दिस इज अ ग्लैंड। अब ये ग्लैंड जो भी सीक्रेट करेगा इसके साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहां तक, टारगेटेड ऑर्गन तक। तो मान लो कि ये टारगेटेड ऑर्गन है पॉइंट बी। ठीक है, तो हम थोड़ा एग्जांपल ले लेंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स का। ठीक है, तो अगर आप सलाइवरी ग्लैंड्स का एग्जांपल लोगे तो क्या करता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड ने क्या कर लिया, सलाइवा, क्या काम है उसका, सलाइवा सीक्रेट करना कंटिन्यूअसली। अब सलाइवा सीक्रेट करने के बाद इसका तो फंक्शन ग्लैंड के अंदर नहीं है, अभी ग्लैंड ने सलाइवा सीक्रेट कर दिया, इसका तो फंक्शन है, कहां पे फंक्शन है, ये काम कहां करता है, वो काम करता है बकल कैविटी, मतलब हमारे माउथ के अंदर। तो सलाइवरी ग्लैंड से लेके माउथ तक एक कनेक्शन होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूब लाइक, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स को जो बकल कैविटी है उसके साथ कनेक्ट करता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ऐसा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं डक्ट। क्या कहते हैं हम इसे, डक्ट। ऐसे जब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो हम उसे कहते हैं डक्ट।
ठीक है। तो डक्ट क्या है? दिस इज नथिंग बट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द ग्लैंड विद इट्स टारगेटेड एरिया, ठीक है। पर्पस क्या है? टू pour द सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द टारगेटेड एरिया। अगर ऐसे ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड ऐसा, जिस ग्लैंड के पास ये प्रोसेस है या इस तरह के स्ट्रक्चर है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, तो उस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब सिक्रीशन जो उसका है, उस ग्लैंड का, वो डायरेक्टली उसके पास स्ट्रक्चर है, डक्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू वो सीधे टारगेटेड एरिया पे अपना सिक्रीशन पोर कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। इस तरह के हम ग्लैंड्स को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के यूनिट में। सो देयर इज अ चैप्टर ऑफ एंडोक्राइन अबाउट एंटायर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हम वहां पे पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? ये जो ग्लैंड्स है, इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड डक्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं। जो भी सिक्रीट करते हैं वो सीधे ब्लड में छोड़ देते हैं, और ब्लड उस सिक्रीशन को कैरी करके टारगेटेड ऑर्गन तक, टारगेटेड पार्ट तक, बॉडी का, वहां तक लेके जाता है। तो दोनों में फर्क है। एक है डायरेक्ट अपने आप उसके पास स्ट्रक्चर है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू अपना सिक्रीशन टारगेटेड एरिया में दे सकता है। दूसरे तरह के ग्लैंड्स क्या है? वो उनके पास कोई भी इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या डक्ट नहीं होते हैं। They release entire secretion of their inside the blood, then blood carry those substances, chemical substances, or the secretion of those glands to the targeted area. ठीक है, so ये main difference है, ये हमको समझना पड़ेगा। Now we will discuss about the mode of secretion in other categories also. We have divided the glands on the basis of the mode of secretion. हमने और broader sense में divide किया है mode of secretion के ऊपर। पहला है holocrine gland, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? देखो, in these glands, in case of the holocrine gland, an entire cell which filled with the secretory products or actually disintegrates and is discharged as a part of secretion. क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस तरह के ग्लैंड्स में क्या होता है कि एक पूरा सेल, ठीक है, जिसमें कि ये पूरा उस ग्लैंड का पूरा सिक्रीशन अवेलेबल है, उसमें पूरा भरा हुआ है वो सिक्रीशन, तो वो क्या होगा? That cell will disintegrate, वो सेल क्या होगा? रप्चर हो जाएगा, वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके बाद उस सेल के अंदर से जितने भी सारे सिक्रीशन है उस पर्टिकुलर ग्लैंड का, वो बाहर आ जाएगा। इस तरह के ग्लैंड, मतलब जो ग्लैंड इस तरह से अपना सिक्रीशन को रिलीज करता है, उस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल है ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है? जो ग्लैंड का पूरा एक सेल है जिसमें कि पूरा सिक्रीशन उसी में है, वो पूरा सेल मतलब रप्चर हो जाता है टू रिलीज द सिक्रीशन। नेक्स्ट क्या है? म्यूकोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है कि द ग्लैंड, इन दिस केस द ग्लैंड, or we can say in these glands the secretion is discharged by the cell by simple diffusion, so that there is no loss of cell or their parts. अब इसमें क्या है? पहले हमने क्या देखा? ग्लैंड्स का जो सेल है वो पूरा अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसके बाद जो सिक्रीशन है वो रिलीज होता है और अपने टारगेटेड ऑर्गन में जाके काम करता है। म्यूकोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है? जो सेल में, जिस सेल के अंदर, ग्लैंड के जिस सेल में सिक्रीशन है, उससे जो सिक्रीशन है वो ऑटोमेटिकली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मतलब सेल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें सेल क्या है? सेल बर्बाद नहीं होता, सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता, सेल रप्चर नहीं होता, सेल यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। सो बाय दिस व्हाट वी कैन से, इन केस ऑफ द म्यूकोक्राइन ग्लैंड्स देयर इज नो लॉस ऑफ द सेल, सेल की बर्बादी यहाँ पे नहीं होती है, सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जो कि होलोक्राइन में होता है। एग्जांपल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एपोक्राइन ग्लैंड। अभी एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा? इन दीज ग्लैंड्स the secretory products accumulate in apical part of the cell. इसके में इस तरह के ग्लैंड में क्या होता है? जो सेल होता है जिसमें कि सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, मतलब सीक्रीशन है उस ग्लैंड का, वो टिप पार्ट में, सेल के एकदम ऊपर में जो टिप पार्ट है, जो एपिकल पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, हिस्सा है, वहां पे आ जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? later this part breaks off from the cell and is discharged as secretion. और बाद में क्या होता है? जो एपिकल पार्ट है सेल का, जहां पे ये पूरा सिक्रीशन है, पूरा सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो है ग्लैंड्स का, वहां जो सिक्रीशन है पूरे ग्लैंड्स का उसमें है, वो क्या करता है? वो एपिकल पार्ट जो है वो टूट के बाहर चला जाता है,
सेल से जो एपिकल पार्ट है वो टूट के अलग हो जाता है, फिर जाके वो रप्चर होता है, फिर अपना जो सिक्रीशन है वो रिलीज कर जाता है, डिस्चार्ज इट्स सिक्रीशन। सो दिस इज द प्रोसेस। तो हमने देखा तीन तरह से हम बता सकते हैं। अच्छा, एपोक्राइन के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। सी, एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, द टिप ऑफ द सेल रप्चर्स। एग्जांपल क्या है, स्वेट ग्लैंड्स ऑफ आर्मपिट्स। आर्मपिट्स जो होते हैं हमारे, उसमें जो स्वेट ग्लैंड्स है वो बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं। उसका जो सेल होता है ग्लैंड का, उसका जो टिप पार्ट होता है, उसमें जो सिक्रीशन है वो जाके वहां जमा हो जाता है, बाद में वो टिप पार्ट अलग हो जाता है सेल से। इससे सेल भी बर्बाद नहीं होता, सेल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस कुछ उस सेल का थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाता है और फिर जाके वो डिस्चार्ज करते हैं अपना जो सिक्रीशन है वो। ठीक है ना। इन दिस केस the sweat is released and along with that the tip is also ruptures। ठीक है, अभी जो एपोक्राइन में क्या होता है, ये जो टिप पार्ट होता है सेल का वो एक्चुअली सेल से अलग हो जाता है और वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, सो in case of the apocrine or in case of the apocrine gland, the sweat is released and along with that the tip is also ruptured. That is why some stain is also released। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मेमरी ग्लैंड्स इज एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना। अभी हम वही बात कर रहे थे, बहुत सारे क्राइटेरिया हमने बात किया। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ग्लैंड्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करने का। एक होता है डक्ट्स एंड विदाउट डक्ट्स, वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। ठीक है, हम ग्लैंड्स को और भी कुछ तरीके पे डिवाइड कर सकते हैं। नेमली फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल इज सलाइवरी ग्लैंड, सिल्वर डक्ट, लिवर। So in this case, exocrine केस क्या होता है कि ducts are present in these glands। हमने डिस्कस किया अभी कि what are ducts, what is its function। तो ये जो ग्लैंड्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें जो ducts है वो होता है। एंडोक्राइन में कोई भी डक्ट नहीं होता, इसीलिए हम उस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दूसरा हमने क्या नाम दिया है, डक्टलेस ग्लैंड। कोई भी ग्लैंड नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। नेक्स्ट कैटेगरी इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसा ग्लैंड जिसमें एंडोक्राइन का पार्ट भी है और एक्सोक्राइन का भी है। द ग्लैंड, सम पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज वर्किंग एज एंडोक्राइन एंड अदर पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज वर्किंग एज एक्सोक्राइन। अगर दो पार्ट किसी एक ग्लैंड में कॉमन है तो वैसे ग्लैंड को कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल है पैनक्रियास। पैनक्रियास में क्या है ना, एंडोक्राइन पार्ट भी है, उसका काम है इंसुलिन सीक्रेट करना, और उसमें एक्सोक्राइन पार्ट है, उसका काम है डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करना। तो दोनों ही पार्ट हमें पैनक्रियास में देखने मिलते हैं, इसीलिए हम पैनक्रियास को मानते हैं ये क्या है, इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या ग्लैंड है ये, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, राइट। नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, तो शेप के बेसिस में भी हम ग्लैंड का जो शेप है उसके बेसिस में भी हम जो है जो आपके ग्लैंड है उसको डिवाइड कर सकते हैं सर्टेन कैटेगरीज में। तो एक एक करके हम बात करेंगे। पहला क्या है, पहला फर्स्ट वन इज योर ट्यूबुलर। ठीक है, दूसरा क्या है, एल्वियोलर और सैक्युलर और एक्टिना। तो बेसिकली जो दो तरह के आपके जो टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। पहला है ट्यूबुलर ग्लैंड। ट्यूबुलर ग्लैंड को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अनब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड एंड कंपाउंड और ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब शेप के हिसाब से हम देख सकते हैं ट्यूब लाइक शेप है, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे एल्वियोलर लाइक और सैक्युलर लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे शेप बनाया है। ठीक है, तो वैसे ग्लैंड बिकॉज इट लुक लाइक अ सैक, इट लुक लाइक सैक और एल्वियोलर, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसको हम कहते हैं एल्वियोलर और सैक्युलर ग्लैंड। ठीक है, और ट्यूबुलर क्या है, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड को। पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड। सिंपल मतलब अनब्रांच्ड एंड कंपाउंड मतलब ब्रांच्ड। नेक्स्ट, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। सिंपल ट्यूबुलर मतलब दिस इज द शेप। एग्जांपल है क्रिप्स ऑफ लाइवर, उसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर होगा है तो उसे हम कहते हैं सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। एग्जांपल है क्रिप्स ऑफ लाइवर। देन सिंपल कॉइल ट्यूबुलर।
इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड देन एट द एंड द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक्चुअली कॉइलिंग अ बिट। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अगर हमें ट्यूब लाइक ग्लैंड में ऐसे कॉइल जैसा स्ट्रक्चर दिखे तो हम उसे बोलते हैं सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, थोड़े से कॉइल टाइप के होते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब एक ही स्ट्रक्चर में बहुत सारे ट्यूबुलर ग्लैंड, अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर किसी एक ही ग्लैंड में एक साथ है तो उसे वैसे ग्लैंड को हम कहते हैं कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। एग्जांपल पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, राइट, एग्जांपल इज पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो पहला कैटेगरी था ट्यूबुलर ग्लैंड्स का। नाउ सेकंड कैटेगरी इज योर एल्वियोलार सर्कुलर ग्लैंड, एल्वियोलार सर्कुलर ग्लैंड, ठीक है, और सैक-लाइक ग्लैंड। तो सैक-लाइक ग्लैंड क्या है, इसमें भी दो कैटेगरीज होते हैं, सिंपल सैक्युलर ग्लैंड है, दूसरा है कंपाउंड सैक्युलर ग्लैंड। सिंपल सैक्युलर ग्लैंड्स एग्जांपल है पैरायूरेथ्रस एंड कंपाउंड एल्वियोलार का एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड। तो अगर हम सिंपल सैक्युलर देखेंगे तो उसमें एक सिंगल the glands which are having sac-like structure and the sac-like or pouch-like structure is only like there is no complicated structure, only simple pouch-like structure, a single simple pouch-like structure अगर ऐसा है तो हम उसे कहते हैं alveolar, simple alveolar और circular gland। और अगर हम देख सकते हैं कि बहुत सारा जैसे इसमें सेकेंड डायग्राम में हम देख सकते हैं there are different types of structure, different types of modification. You can see that there are not only a single sac-like structure, there are multiple sac-like structure instead of single one. अगर ऐसा है तो हम उसे कहते हैं compound alveolar ग्लैंड, ठीक है, एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड जो है उसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो उसमें जो आपके जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ग्लैंड के, सो इट इज लाइक दिस कंपाउंड, नॉट सिंपल, राइट। नेक्स्ट, so this is the salivary or mammary gland. This is the structure of salivary and mammary gland. If you see there is a tube-like structure, then again the tube-like structure is further divided and form the another tube-like structure which are interconnected, and at the end there is ampulla or ampullae. So that is we'll discuss in later on when we talk about the mammary gland in detail. So we'll study that in detail. So this is the different types of compound and complex type of gland structure, but we can see. So glands can also be depends on the shape. We can divide on the basis of the shape of the gland in different categories, right? Now we'll talk about the difference between the pseudostratified epithelium and transitional epithelium. Pseudostratified epithelium क्या है और transitional epithelium क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो सूडो जो है, पहला जो आपको समझना होगा, सूडो स्ट्रैटिफाइड, सूडो का मतलब ये होता है फॉल्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना है सूडो इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है, PSEUDO सूडो, ठीक है, सूडो देन इट इज एडेड विद स्ट्रैटिफाइड। सूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब फॉल्सली स्ट्रैटिफाइड, मतलब क्या है कि हमें दिख रहा है कि स्ट्रैटिफिकेशन है बट एक्चुअल में कोई स्ट्रैटिफिकेशन या लेयर नहीं है, फॉल्स है। सो ये हमारे आंखों का धोखा है। हम अगर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो जो है इसमें लेयर्स है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी लेयर्स नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन, अगर ऐसा इस तरह का एपिथेलियम है तो हम उसे कहते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर। इसमें होता क्या है कि सेल जो है सिंगल लेयर में होता है, बट द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल, because the position of the nuclei or the nucleus is different from different in each of the cell, that's why it appears to be stratified। ये थोड़ा stratified लगता है। So you can see the same thing in the diagram also here. This is a diagram. You can see that there are cells which are actually of same size and same shape and there is no layer, only the nucleus are actually present in a different location, and which seems that there is a stratification because of the presence of the nucleus in different cell in different way, ठीक है ना। So the most common cell are columnar cell, ठीक है। So the most common cell in case of the pseudostratified epithelium is the columnar cell,
Now the ciliated columnar pseudostratified epithelium. So what is the meaning of that? Ciliated columnar pseudostratified epithelium मतलब ऐसा एपिथेलियम जो कि सिलिएटेड है और कोलुमनार शेप के सेल से बना है और सूडो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिलिएटेड कोलुमनार सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एग्जांपल कहाँ पे हमें मिलेगा ये सिलिएटेड कोलुमनार सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम? वी कैन फाइंड इट इन दी अपर रेस्पिरेटरी पार्ट। कहाँ पे मिलेगा हमें? अपर रेस्पिरेटरी पार्ट, right? So that is actually about the pseudostratified epithelium. Now next is transitional epithelium. Transitional epithelium. Now the transitional epithelium is actually made up of multiple layers, ठीक है। इसको तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम तो आपको समझ में आया होगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब होता है ना, देयर इज अ ट्रांजिशन फेज। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, तो आप देखिए कि डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर आर 3 एरोस हियर, लेफ्ट साइड वन, राइट साइड वन, एंड वन इज अदर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, तो उसमें जो लेयर्स है सेल्स के ऊपर में होगा, देखो ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारे लेयर्स है। अब जब होता क्या है ट्रांजिशन मतलब, व्हेन देयर इज अ लाइक स्ट्रेच्ड, व्हेन दिस टिश्यू इज एक्चुअली स्ट्रेच्ड अप, खिंचाव ज्यादा होता है जब, तो ये जो लेयर्स हैं ये एक्चुअली these layers are actually flexible, and as a result they can adjust, and they can accommodate with the another layers when they are actually getting stretched, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी लेयर्स हमें दिख रहे हैं ना, सो जब देयर इज जब थोड़ा स्ट्रेचिंग होगा, मतलब जब थोड़ा सा लाइक when there is a stretching, the stretched up, when the tissue is stretched up actually, as a result these cells or the layers they will actually adjust with one another। मतलब क्या है कि मान लीजिए 10 लेयर से ये जो आपका एपिथेलियम, जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो 10 लेयर का है, लेकिन जब उसको हम उसमें जब खिंचाव होता है, उसमें जब मतलब इलास्टिसिटी उसको इंक्रीज करना होता है, तो ये सारे जो 10 लेयर है वो घट के 2 या 3 लेयर हो जाएंगे, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के जो है जो लेंथ है और जो इलास्टिसिटी है उस पर्टिकुलर पार्ट का, उसको बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो वैसा अगर है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वैसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो व्हेन इट गेट्स स्ट्रेच्ड अप, ऑल स्ट्रेच्ड अप, the cell of the upper layer get accommodated। क्या होता है कि हमने भी बताया, मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे लेयर होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, तो जब खिंचाव होता है तो जो आपके ऊपर वाले जो लेयर है वो नीचे वाले लेयर के साथ एकोमोडेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ताकि जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, इलास्टिसिटी बढ़ जाए, ठीक है, और जो टिश्यू है वो रप्चर ना हो, ठीक है। So when it is stretched up, when this type of tissues are getting stretched up, the cell of the upper layer get accommodated in between the cell of the lower layer, right? Now when the lowermost layer is known as basal layer. So you can see here that I have already marked in the diagram. So this is the middle layer, which is present in between the stratification of the tissue, different layers. So this is the middle layer. Then we have the basal layer, or what we can call the basement membrane. So the lowermost layer is known as basal layer. The lowermost layer is known as basal layer. Now the next thing is we'll talk about again, that is your pseudostratified epithelium. So let us continue with that. See the non-ciliated pseudostratified epithelium example, vast difference with stereocilia found in epididymis, okay? So the non-ciliated pseudostratified epithelium, that is vast difference.
and with stereocilia found in epididymis, right? And what about the pseudo stratified, what about the transitional epithelium? So pseudo stratified epithelium is done. We'll talk about the transitional epithelium further. Now the basal layer is going to hold the membrane to the basement membrane so that the nourishment can be obtained. तो जो basal layer होता है और the basement membrane होता है, it is going to hold the, actually it is helping the membrane and the basement membrane so that the nourishment can be obtained. अब जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसमें जो नरिशमेंट है वो इन्हें कहाँ से मिलता है? They are getting it from the basement membrane so that the nourishment can be obtained. So basement membrane से जो nourishment है उसको obtain करते हैं. Now it is going to help in the formation of new cell by dividing. So it is going to help in the formation of new cell by dividing. So the transitional epithelium, it is going to help in the formation of new cell by dividing. इसका मतलब है transitional epithelium जो है actually it can help to like develop new cells, right? Now the middle layer or the intermediate layer, the middle layer and the intermediate layer, it is secretory in nature. तो ट्रांजिशन एपिथेलियम का जो मिडिल लेयर होता है और द इनर और द इंटरमीडिएट लेयर, मिडिल लेयर और द इंटरमीडिएट लेयर, इट इज सिक्रेटरी इन नेचर एंड विच सीक्रेट केराटिन. तो ये क्या सीक्रेट करते हैं? ये जो मिडिल लेयर है दे सीक्रेट केराटिन और केराटिन. नाउ एज द लोअर लेयर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, it has some additional structure. It has tonofibrils. As the lower level is actually providing the support, it has some additional structure. It has tonofibrils. So in case of the transitional epithelium, the lower actually layer is providing the support at last, and it has some additional structure as well. It has tonofibrils. Then the secretory cells have more Golgi bodies. और क्या होता है? जो secretory cell होता है उसमें Golgi bodies सबसे ज्यादा होता है. And the uppermost layer is known as superficial layer. जो layer सबसे ऊपर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? Superficial layer. Okay. Now found in the living of urinary bladder. ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, क्योंकि ये क्या है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मतलब इट कैन स्ट्रेच्ड मल्टीपल जो लेयर्स हैं सेल के, दे कैन एकोमोडेट विद वन अनदर एंड दे कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एज अ रिजल्ट इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी. और व्हाट वी कैन से इन अदर वे, इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी एज वेल. अभी यूरिनरी ब्लडर में क्या होता है? जब यूरिनरी ब्लडर में जब फील होता है तो धीरे धीरे जो यूरिनरी ब्लडर उसका स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है जस्ट लाइक ए बलून. एंड व्हाई इट इज पॉसिबल, व्हाई इट इज हैपनिंग, एंड इट इज increasing slowly as a it is as a process, right? And the urinary bladder is actually working as it's having elasticity. And the elasticity is actually provided by the transitional epithelium, which is present inside the the transitional epithelium जो है ना, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा. You should not get confused. It is very very important. देखो ऐसा है कि यूरिनरी ब्लडर का हम एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक्चुअली यूरिनरी ब्लडर को बनाता है. It is made up of transitional epithelium. इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि जब भी जो यूरिनरी ब्लडर है ये जब फील होगा तो ये एक्सपैंड कर सकता है, ये अपना साइज जो है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर सकता है. व्हाई?
because it is made up of transition epithelium tissue and uh, which is having the capacity of elasticity. ये थोड़ा बहुत इलास्टिक जैसा काम करता है. क्यों? क्योंकि इसमें जो मल्टीपल लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ एकोमोडेट है कि मतलब 10 लेयर होंगे तो अगर जब स्ट्रेच होगा, जब जब स्ट्रक्चर जब स्ट्रेच होता है, जब मतलब उसका साइज इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है, तो उस समय जो मल्टीपल लेयर्स है टिश्यूज के वो घट के 2-3 लेयर बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ के सपोर्ट करते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, राइट. So that is actually a type of transitional epithelium, right? So till this we'll finish today. We'll talk later on in the next video. Till then, take care. Thank you. Stay at home. Be safe.